Yes. So in the previous class, we will take a just review of 2-3 minutes what we were discussing in the last class. In the previous class, we were describing how to form the Z-bus by modification technique, and we have seen there are 4 modifications, and those at least you should know the formula for all those. First modification was if we add new bus to the reference into the existing Z bus, if there is a network and that network is having some Z bus, and if you want to add a new bus, if you want to add a transmission line which is connected between new bus to the reference bus, it was called as a type 1 modification. And if you remember, its formula was very एक्सक्यूज simple. सर, सर Yes. चेतना की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, हाँ ये भी चेतना करो। देखिए पानी आ रहा है। ये रीनू म्यूट करो, ओके सर। आपका आवाज आ रही है फैमिली का। नो चेतना, चेतना कहाँ है? Nobody is there. Okay. So this when a transmission line is connected between new bus to the reference bus, then the simple formula was that Z bus existing. This was the formula that it was the existing Z bus, that is the Z bus old, and this Z bus old simply since a transmission line is connected between new bus to the reference bus, so the size of the Z bus increased by 1, and it was by increasing the row and column. All elements of row and column are 0 except this diagonal element, which is equivalent to the ZS, and ZS is the impedance of ZS is the impedance ZS is the impedance of the line, this line which has been added into the system. So this was the formula, type 1 modification. Then next was if a transmission line is connected between the new bus to the old bus. New bus to the old bus, that was the first was the new bus to the reference bus. And if it is a new bus to the old bus, here it is a new bus, it is the old bus. Okay, new bus, and its impedance of transmission line is ZS. Then the formula became, then this formula was this one row and one column element is added. The formula was the new bus to the old bus. So old bus is the say kth bus. So kth bus means so kth row will be kth row of the existing Z bus. It was the existing Z bus. Here kth row will be added here. Kth column will be added here, and kth row will be added here. And this is ZS plus ZKK. ZKK is the kth row. Since the new transmission line is added between the new bus to the old existing bus. So the old bus number is K. So ZKK is here. Kth row and kth column element of the old bus is added here, plus ZS is the impedance transmission line. So this is the formula number 2. So we should remember this formula. Then third was if transmission line is added between the old bus to the reference bus. Old bus is the kth bus and it is connected between the reference bus. So an impedance of transmission line is ZS. So the formula was this: Z bus new, Z bus old, and Z bus old, and this is the kth row because old bus to the reference bus. So it was the kth row, and this was the kth column. This is the kth row, and 1 by ZKK plus ZS. ZS is the impedance of the line, and ZKK is the kth row kth column element. So what will be the size of Z bus new? Size of Z bus new will be the same of the size of Z bus old. So in the third modification, the size of the Z bus does not change. Size remains the same. Only size changes in the 1 and 2 modification, first and second modification.
In third modification, size does not change. And in the fourth was, if a transmission line is added between the two old buses, ith and kth, both are the old buses, and here a transmission line is added, then the formula came out to be, you should remember this formula. This formula was this. Z was old. The transmission line is added between ith row and kth row. So ith column minus kth column. Similarly, here ith column minus kth column. This is one. And similarly, ith row minus kth row. This is here. And Zs is the impedance of the transmission line. Zii, ith row, ith column. Because line is connected between I and K, so ZKK, kth row, kth column, and Z minus 2ZIK. So these are the four formulas. While doing this, you remember we applied a node reduction technique. If you see here, what we did in the third, what we did here in this matrix, the size of this matrix was the n plus 1, because here it is 0 voltage, so we can remove this. We can remove one row and one column. That was called as a node elimination technique, and this is to be explained now how it was done. Then we will take some numerical question. Let us have this. What was the node reduction technique? So, for example, say there are three equations, V1, V2, V3, and they are related with this equation. Say this is like, for example, if you see here, this is the okay. These are the three equations, V1, V2, V3, and they are related. If you write these equations into the matrix form, it will be the Z11, Z12, Z13, first row, Z21, Z22, Z23, second row, Z31, Z32, Z33, third row. This is one matrix, and in the column I1, I2, I3. And here, if the voltage is 0, if you see the type 3 modification there, then this voltage was 0, 1, VQ was 0. So if this voltage is 0, then in place of writing these three equations, we can write only two equations to represent it. So what we did here, if the voltage is 0, if one of the voltage is 0, then we can, if this is 0, then this equation, this third equation can be written like this. Here it is voltage 0. When this voltage is 0, from here we can write I3. This I3 here, I3 will be, this thing will be, if this will go on the left hand side, it will be minus sign divided by Z33. So I3 can be written like this. If you put this value of I3 here and here, if you put this value of I3 here, if you put this value of I3 here also, then they will be in the form of I1, I2. Okay, here I1, I2, and Z3 is again a function of I1, I2, so it will be the function of I1, I2. This will also be the function of I1, I2. And finally, these two equations V1, V2 can be written like this. Okay, this V1 and V1 will be written like this, and similarly V2 can be written. After putting the value of I3, this can be written as a V1 and V2. So V1, V2. Now V1 and V2 can be written, and this is I1, I2. So this can be written into again matrix form. I1, I2 is the one column matrix, and this is the first element. It is the first row, first column element. It is first row, second column element, second row, first column, and second row, second column element. In this way, you can write this into this form, matrix into this form. Okay, इस मैट्रिक्स को आपने ऐसे लिखा this, and if you again write this Z11, Z2, this you can write it like this, and it is Z33. Here it is Z33. If you solve this, इसको आप solve करेंगे, then you will get this. ये same चीज है. Means what is the meaning of this? If the last row, third or any last row where voltage is 0, then you can say this is the old Z11, or you can say this is the one row and one column element after removing
this is the you can say Z bus or the matrix, and the column which is eliminated, the column, this is the row, this is the column eliminated, it is the row eliminated, and Z3 is the diagonal elements. So this is the formula. This formula was used, if you remember, this formula was used here. You see here it is a voltage 0, this was the our matrix, and this was the, since it is a 0, so last row and last column element, you see this is the column is written here, this row is written here, and this value diagonal element is written here. So this is the same formula. In this way, it means that formula of node reduction technique was applied here. So this is one thing, that how the 4 modifications were done and how the node elimination technique was applied. Okay, is there any question up to now? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? Is the things clear so far? Yes, sir. Yes, sir. Now, if this is clear, then we have given in one numerical question how to form the Z bus. So the question was, here itself, the question is, say for example, we have taken one numerical question and we will form the Z bus here. Using all those 4 modifications, 4 modifications means 4 formula. We will use the 4 formula. So suppose this network is given, any network is given, and we want to form the Z bus. How we will apply all those formulas here? What we will do, although here in this example we have taken only resistances, but in fact they can be resistance and inductances or capacitances, means any type of impedance can be there. Z value may be complex number, and here just for simplicity we have given the value of impedance is 1 ohm for each element, but in fact they are different, they can be different. Now what we will do when we want to form the Z bus for any given network, first of all what we will do, first of all we will make one as a reference or slack bus. 1.1 bus is made as a reference bus. Suppose आपने इसको reference बना लिया, any bus. Now we will give the numbering. Second thing will be to give the numbering of all buses. तो हमने बस को numbering दे दी 1 2 3, any numbering you can give, whatever number you will give, you know. देखिए आपको बाई बस बनाना है, तो अगर आपने फर्स्ट बस को 1 माना है, सेकंड बस को 2 माना है, थर्ड, और whatever numbering you have given, according to that there will be बाई बस. अदरवाइज एलिमेंट की वैल्यू आपकी ऊपर नीचे हो जाएगी, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा उसके अकॉर्डिंगली, मींस we know how to form the बाई बस and what is the meaning of बाई बस. And inverse of बाई बस is the Z bus. Only in this method there is a technique is different. Otherwise the whatever will come, जो Z bus निकल कर आएगा वो वही होगा जो बाई बस का इनवर्स होगा, और वो बाई बस डिपेंड करता है आपने नंबरिंग कैसे की है. तो आपने नंबरिंग आपने दे दी स्टार्टिंग में, सपोज 1 2 3 नंबरिंग दे दी. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक वन एलिमेंट एट ए टाइम, एक ट्रांसमिशन लाइन एट ए टाइम. ये ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है और एनी impedance can be there. So we will take one transmission line or one element at a time. तो हम एक एलिमेंट लेंगे. We can start from one. पहले फर्स्ट मी, और क्या करेंगे हम, जैसे क्या था फर्स्ट मॉडिफिकेशन क्या था, न्यू बस टू रेफरेंस बस. तो हम पहले न्यू बसेस लेंगे, न्यू बस टू रेफरेंस लेंगे, फिर न्यू बस टू रेफरेंस, देन न्यू बस टू रेफरेंस के बाद में देन वी कैन टेक द ओल्ड बस टू रेफरेंस. देन क्योंकि देखिए न्यू बस टू रेफरेंस और न्यू बस टू ओल्ड बस, न्यू बस टू रेफरेंस बस जब लेंगे तो एक साइज इंक्रीज करेगा. व्हेनेवर द न्यू बस विल कम, तो व्हेनेवर न्यू बस विल कम साइज ऑफ द मैट्रिक्स विल इंक्रीज. तो न्यू बस टू रेफरेंस लेंगे, फिर न्यू बस टू ओल्ड बस लेंगे जिससे आपकी साइज कवर हो जाए. उसके बाद ओल्ड बस टू रेफरेंस एंड ओल्ड बस टू ओल्ड बस, तो उसमें साइज इंक्रीज नहीं करेगा, तो स्टार्टिंग में हमारा साइज मैट्रिक्स का कवर कर लेगा. सो व्हाट विल टेक न्यू बस टू रेफरेंस. सपोज हमने एक लिया, एक ऐसा ट्रांसमिशन, ये नेटवर्क लिया, इस नेटवर्क में
एक एक करके एलिमेंट ऐड करेंगे. सपोज इन द बिगिनिंग देयर इज वन बस, ओनली बस नंबर 1 इज देयर एंड दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन. ओके, एक ही बस है और एक ही ट्रांसमिशन लाइन है. तो ये कुछ नहीं है, ये ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं है, सपोज ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. ओनली वन ट्रांसमिशन लाइन इज देयर विच इज कनेक्टेड बिटवीन वन एंड रेफरेंस बस. वन और रेफरेंस बस के बीच में एक कनेक्टेड है एंड वी नो स्टार्टिंग में वन और न्यू बस टू रेफरेंस बस एक ही बस है, एक ही ट्रांसमिशन लाइन है, तो साइज क्या होगा, एक होगा. साइज विल बी 1/1 और उसकी वैल्यू जेड इम्पीडेंस जो भी है वो. तो स्टार्टिंग में साइज हमारा ये है, जेड बस इज इक्वल टू 1/1 हुज एलिमेंट इज वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज 1 ओम. इट इज 1 ओम. तो स्टार्टिंग में साइज ये हो गया. नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल टेक अनदर एलिमेंट विच इज कनेक्टेड बिटवीन द दिस. ये देखिए न्यू बस टू रेफरेंस हो गया और ये भी न्यू, फर्स्ट बस न्यू ले लिया, ये भी न्यू है, न्यू बस टू द रेफरेंस. अब हमने ये एलिमेंट लिया, ये भी नया आ रहा है ना फर्स्ट. तो अब ये तो ओल्ड हो गई, पहले ली तो न्यू थी, अब ये जब आएगी तो ये ओल्ड हो जाएगी, लेकिन अभी ये न्यू है. तो न्यू बस टू रेफरेंस ये लिया. न्यू बस टू रेफरेंस में 2 और 0 के बीच में, 2 और रेफरेंस के बीच में 1 ओम ऐड किया. सो इफ वी ऐड एनी एलिमेंट बिटवीन द न्यू बस टू द रेफरेंस बस, विच मॉडिफिकेशन विल बी अप्लाइड, बताइए. न्यू बस टू रेफरेंस बस के लिए कौन सा मॉडिफिकेशन अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला था, First modification. हाँ. सो टाइप 1 मॉडिफिकेशन वाज देयर. और व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ टाइप 1 मॉडिफिकेशन. टाइप 1 मॉडिफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, जो भी ओल्ड है उसी में एक रो और कॉलम इंक्रीज कर जाए. ये 1 है तो ये 1 एज इट इज है, इसका एक रो और एक कॉलम ऐड कर जाएगा, रो एंड कॉलम. एंड ऑल एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 0 एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, और डायगोनल एलिमेंट विल बी इक्वल टू द ZS एंड ZS इज 1 ओम. इज इट क्लियर दिस पॉइंट और नॉट, शुड आई रिपीट इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes, है, sir. अभी आप समझ लें. इज इट क्लियर. यस सर. देखिए फिर समझ लें, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं समझा फिर आगे आपको फिर नहीं समझ में आएगा. न्यू बस, ये पहले हमने बस नंबर 1 ले लिया, न्यू टू रेफरेंस. तो ये तो एक ही बस है, एक ही लाइन है, तो साइज हमारा 1 हो गया, 1/1, और उसकी एलिमेंट ZS हो गया. सेकंड में न्यू बस टू द रेफरेंस बस, न्यू बस टू और रेफरेंस बस ये. तो न्यू बस टू रेफरेंस बस टाइप 1 मॉडिफिकेशन लगेगा. तो जो हमारा ओल्ड बस था, ये दिस इज द ओल्ड बस, इसमें एक रो और एक कॉलम ऐड होगा, और ऑल एलिमेंट और रो एंड कॉलम आर 0. जो हमारा टाइप 1 मॉडिफिकेशन का फॉर्मूला है उसको देखिए, चारों फॉर्मूला आप सामने लिख के रख लीजिए, और ये वैल्यू आपकी ZS हो गई. मीन 0 0 0 0 0 0 और ये ZS. ये हमारा बन गया दिस. मतलब 2 एलिमेंट ऐड हो गए हमारे 1 और 4 के बीच में और 2 और 4 के बीच में. नाउ वी विल टेक बिटवीन 3 एंड 4. ये भी न्यू बस टू द रेफरेंस बस है. हमने पहले न्यू बस सारे ले लेंगे जिससे कि साइज हमारा फिक्स हो जाए. नाउ वी ऐड 3 एंड 4. न्यू बस 3 आ गई, 3 और रेफरेंस के बीच में एक ओम और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया. तो जो ओल्ड बस था, अब इसमें ये ओल्ड बस हो गया, और हमने क्या किया, न्यू बस टू रेफरेंस मॉडिफिकेशन लगाया. मींस वी वांट टू ऐड दिस ट्रांसमिशन लाइन व्हिच इज कनेक्टेड बिटवीन न्यू बस नंबर 3 टू द रेफरेंस बस 4. तो व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन विल बी देयर, बताइए क्या मॉडिफिकेशन होगा इसमें. कौन बताएगा? एक रो और कॉलम और बढ़ जाएगी. हाँ, तो ये भी टाइप 1 मॉडिफिकेशन हुआ. इसमें जो ओल्ड था, ये ओल्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ था एक रो एक कॉलम बन गया, सभी एलिमेंट 0 एक्सेप्ट द ZS, और ZS की वैल्यू 1 ओम गिवन है. तो ये हो गया हमारा टाइप 1 मॉडिफिकेशन. तो बस नंबर 1 2 3 मींस ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड बिटवीन 1 2 एंड 3 हैज बीन टेकन. ओके, अब हम कौन सी ट्रांसमिशन लाइन बच गई, आप इसी फिगर में देखेंगे तो कौन सी ट्रांसमिशन लाइन बच गई. एक तो 1 और 2 के बीच में ट्रांसमिशन लाइन बच गई है, और 1 और 2 के बीच में, और 1 और 3 के बीच में. इसमें देख लीजिए, ये वाली ट्रांसमिशन लाइन बच गई है 1 और 2. ओके, और 1 और 3 के बीच में ये बच गई है. बकाया हमने 3 ट्रांसमिशन लाइन, एक ये 2 और 3 ऐड कर दी, 5 टोटल ट्रांसमिशन लाइन है. 2 बच गई, 1 और 3 एंड 1 एंड 2. तो 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3 बच गया. सो वी कैन टेक एनी ऑफ देम आउट ऑफ दिस. नाउ वी टेक दिस ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड बिटवीन 1 एंड 2. तो 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है. 1 क्या है,
1 और 2 दोनों हम पहले कंसीडर कर चुके हैं, दोनों ओल्ड बस हो गई। तो द ट्रांसमिशन लाइन कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस ZS equal to 1 ohm is connected between the two old buses. Those old buses are 1 and 2. तो दोनों ओल्ड बस हैं तो कौन सा मॉडिफिकेशन लगेगा? When both the buses are old, then which type of modification will be applicable? Fourth modification. फोर्थ। तो फोर्थ मॉडिफिकेशन का फॉर्मूला आप देखिए क्या था फोर्थ मॉडिफिकेशन में, कि ये ओल्ड बस हो गया, ओल्ड हो गया, और देखिए 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हमने ऐड किया है, तो 1 माइनस 2 फर्स्ट रो, ये ऐसे ही तो था, फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो, 1 माइनस 2 करके यहाँ सब्ट्रैक्ट, इस रो में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया, ये आएगा। ऐसे ही कॉलम, और ये फर्स्ट रो में से सेकंड कॉलम, इस रो में से ये फर्स्ट रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, और इसमें क्या था, ZSS, ZII, ZKK और 2ZIK, ये तो था फॉर्मूला। ZSS की वैल्यू इंपेडेंस ऑफ द लाइन है 1 हो गया, और ZIK 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, ZII और ZKK, ZII मीन Z11 या Z11, Z22, Z11 1 है, Z22 1 है, और -2 ZIK, I मान 1 और 2, Z2K, Z12, Z12 फर्स्ट रो ये 0 है, तो 2 माइनस 0, तो ये 0 हो गया। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ये देखिए, ये तो एज आ गया, ये 1/3 हो गया, ये 3 रो एंड 1 कॉलम, 3/1 का साइज, इसका 1/3 है, साइज ऑफ दिस विल बी 3/3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दिस इज द जेड बस, ये हमारा जेड बस न्यू बन गया। सर प्लीज ये फोर्थ पॉइंट को रिपीट कर सकते हैं? कौन सा फोर्थ? ये पूरा यहाँ से? यस सर। हाँ, देखिए हमने पहले 3 ट्रांसमिशन लाइन ऐड कर दी, 1 और 2 के बीच में, 1 और रेफरेंस के बीच में, देन 2 और रेफरेंस के बीच में, देन 3 और रेफरेंस के बीच में। तो इसमें सभी 1 2 3 न्यू बसेस थे, स्टार्टिंग किया था यहीं से, तो न्यू बसेस थे। अब उसके बाद में 1 और 2 हम पहले कंसीडर कर चुके हैं, फर्स्ट बस भी पहले आ चुकी है, 2 भी आ चुकी है, तो अब उसे न्यू नहीं कहेंगे, वो ओल्ड बस बन गई। तो अब जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 1 और 2 के बीच में है, जो दोनों ओल्ड बस हैं। एक ट्रांसमिशन लाइन बची है 1 और 3 के बीच में, वहां भी दोनों ओल्ड बस हैं। तो जब दोनों ओल्ड बस के बीच में ट्रांसमिशन लाइन ऐड करते हैं, तो हमारा दोनों जब ओल्ड बस हैं तो टाइप 4 मॉडिफिकेशन लगता है। टाइप 4 मॉडिफिकेशन का फॉर्मूला अगर आपको देख लो, यहाँ देख लो, टाइप 4 मॉडिफिकेशन का फॉर्मूला देखिए, ये है डी, टाइप 4 मॉडिफिकेशन का फॉर्मूला ये है, जेड बस ओल्ड, ith रो i और k के बीच में है ना, ith रो माइनस ith कॉलम माइनस kth कॉलम, सिमिलरली ith रो माइनस kth रो ओल्ड बस की, और ये i और k था तो ZII, KKK और ZS इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन माइनस 2 ZIK, i और k हमें पता है, I1 है, K 2 है, तो ये इनकी वैल्यू, ये दिस इज द फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है, ये फर्स्ट और 2 है, I1 और 2 के 2, तो फर्स्ट रो माइनस सेकंड, इसमें इसके अंदर फर्स्ट रो माइनस सेकंड, फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड कॉलम यहाँ लिख दिया, फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो यहाँ लिख दिया, और ये ZS, ZII, ZKK माइनस 2 ZIK विच इज 0, तो ये इसको सॉल्व करा तो ये आ गया। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। नाउ एक ही हो गया मॉडिफिकेशन, देन नेक्स्ट वाज द one transmission line left whose impedance is 1 ohm is connected between two old buses 1 and 3। अब एक बचा 1 और 3 के बीच में कनेक्टेड है, तो 1 और 3 के बीच में दोनों ओल्ड है, तो टाइप 4 मॉडिफिकेशन दोबारा लगेगा, टाइप 4 मॉडिफिकेशन यहाँ लगेगा, तो ये जेड बस ओल्ड जो अभी कैलकुलेट किया अब ये ओल्ड हो गया, और 1 और 3 के बीच में कनेक्टेड है, तो इसका फर्स्ट कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, ऐसे ही फर्स्ट रो माइनस थर्ड रो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ये एक्चुअली सेम इसी का ही ट्रांसपोज है ये, और ये ZS और
जेड आई Z11 और Z33, Z11 ये है और Z33 ये आ गया, माइनस 2Z13, 1 और 3 की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया। इसको सॉल्व करिए, 3/1 है, 1/3 है तो ये साइज हो गया, ये 1/3/8 आ गया ये वैल्यू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो फाइनली ऑल द ट्रांसमिशन लाइन हैज बीन कवर्ड। तो फाइनली यू कैन से दिस इज द जेड बस। तो ये जेड बस वही होगा, वाई बस बनाने का मेथड आपको ऑलरेडी पता है, तो आप अगर उससे वाई बस निकालेंगे फिर उसका इन्वर्स करेंगे, देन द सेम रिजल्ट विल कम। एंड द साइज ऑफ दिस इज 3/3 बिकॉज our network size is this, except the reference bus, total number of buses are 3, so size of the matrix is supposed to be 3/3। तो अब इसको इस मेथड से सॉल्व करिए, वाई बस के मेथड से सॉल्व करिए, द सेम रिजल्ट विल कम। द purpose of this is because in the short circuit studies Z bus is used very frequently and we need to have various modification। एक टाइम कोई ट्रांसमिशन लाइन ऐड हो गई, कभी ट्रांसमिशन लाइन हट गई, फॉल्ट कभी कहीं पे आ गया, कभी फॉल्ट कहीं पे आ गया, again and again we need to form the Z bus। That's why modification technique is simpler, and otherwise in the Y bus you have to form the complete Y bus matrix। So is this clear how to form the Z bus? Yes, sir. Now if some fault occurs, suppose for example say fault occurs here, this now say any network is there, say for example this is a network, in this network say fault occurs as bus number 2 or say bus number 3, it is okay, anyway wherever you can consider। This numerical question we solved I think earlier also। So for example say fault occurs at bus number 2, यहाँ ये फॉल्ट हो गया, मींस फॉल्ट का मतलब क्या, सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया, बस नंबर 2 बिकम शॉर्ट सर्किटेड बाय एन इम्पीडेंस इक्वल टू ZS, इसकी वैल्यू ZS है और यहाँ ये शॉर्ट सर्किट हो गई। तो शॉर्ट सर्किट हो गया, इसमें फॉल्ट करंट कितना होगा, फॉल्ट करंट मींस करंट फ्लोइंग फ्रॉम 2 to 0, 2 और 0 के बीच में यहाँ फॉल्ट हुआ है, कितना फॉल्ट करंट होगा और इन सबका वोल्टेज उस समय क्या होगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला था, इफ द फॉल्ट ऑकर्ड एट बस नंबर 2, तो आपका देखिए इसमें इन केस ऑफ ए सिमेट्रिकल फॉल्ट, in case of a symmetrical fault, if you remember this was the formula, fault current was Vk0 ZKK plus ZF, simple। Vk0 is the voltage before fault, fault होने से पहले वोल्टेज। तो देखिए फॉल्ट होने से पहले वोल्टेज, फॉल्ट होने से पहले इसका वोल्टेज, आई टोल्ड सिंस वी कंसीडर द सिस्टम इज एट नो लोड, जब इस पर कोई लोड नहीं है तो उसका वोल्टेज वही होगा जो हमारा सिस्टम वोल्टेज है, मतलब अगर इसका वोल्टेज 1 पर यूनिट है तो ये 1 पर यूनिट, क्योंकि कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही, यहाँ से यहाँ कोई करंट ही नहीं है, तो वट एवर वोल्टेज इज हियर सेम वोल्टेज विल बी हियर, so it will be 1 per unit। And if load is connected, then or otherwise from the load flow study we can find what is the pre-fault voltage, but here let us have the voltage of pre-fault voltage is 1 per unit। तो इसमें हमने जो फॉर्मूला वाज, दिस वाज द फॉर्मूला, तो ये दिस इज 1 पर यूनिट। ZF इज द इम्पीडेंस बाय विच इट इज शॉर्ट सर्किटेड, सपोज इसकी वैल्यू है ZS की कुछ वैल्यू है, सपोज -2J, तो इसकी वैल्यू जो भी इम्पीडेंस है ZF इज गिवन, दिस इज गिवन, Z इज गिवन। फॉल्ट ऑकर्स एट बस नंबर 2, तो अब करना क्या है, केवल Z22 निकालना है, जेड बस का, ये क्या है, जेड बस का सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट निकालना है। तो अभी आपने जो ये जेड बस बनाया है, ये आपकी फाइनल इसी का सपोज करिए यही जेड बस है, अदरवाइज व्हाट एवर मे बी देयर, जिस मेथड से हमने इसका जेड बस बनाया है उसी मेथड से इसका जेड बस बनाएंगे, सेम मेथड। इसका जब जेड बस बनाएंगे तो जेड बस, इसका साइज क्या होगा जेड बस का, अदर देन द रेफरेंस बस देयर आर 4 बसेस, साइज ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 4/4। तो उसमें सेकंड रो, उसका सेकंड कॉलम एलिमेंट उठाना है केवल, वी वांट टू फाइंड आउट ओनली सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट। तो इसमें वहां से सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट यहां रख देंगे, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट जो जेड बस बनाया है वहां से ले लेंगे। ZF इज द इम्पीडेंस ऑफ द
शॉर्ट सर्किट वैल्यू जिससे वो शॉर्ट सर्किट हुआ है ZS, जहां से शॉर्ट सर्किट हुआ है ZF, और ये आपने 1 ले लिया तो ये फॉल्ट करंट आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? ये चीज आ गई, आपको समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। ब्रिजेश? यस सर, सेकंड रो पे जो फॉल्ट होगा सर उसका ही लेंगे ना सर? हाँ, उसकी Yes. वैल्यू यहाँ लेंगे। तो अगर थर्ड बस में फॉल्ट है तो Z33 ले लेंगे, फोर्थ बस में फॉल्ट है तो Z44 ले लेंगे। अशोक, इज इट क्लियर? अशोक, चेतना, धीरज, यस सर। क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये आपने सपोज सेकंड बस पे फॉरवर्ड Z22 ले लिया, ये इम्पीडेंस गिवन है जिसके द्वारा अगर पेड़, सपोज करिए पेड़ ट्रांसमिशन लाइन पे गिर गया है तो उसकी इम्पीडेंस हो गई अर्थ और उसके बीच में, ये 1 पर यूनिट लिया तो ZF ये आ गया आपका फॉल्ट करंट। ये फॉल्ट करंट आ गया कि हमारी सेकंड बस पे फॉल्ट हुआ तो सेकंड से ग्राउंड के बीच में इतनी करंट फ्लो करेगी फॉल्ट करंट। ये फॉल्ट करंट आप यहाँ रखेंगे, ये फॉल्ट करंट यहाँ आ गई। तो अब ये क्या है, सब V1 V2 V3 V4 सभी बसेस का वोल्टेज, फॉल्ट वोल्टेजेस, सभी बसेस का फॉल्ट वोल्टेजेस मींस वोल्टेज आफ्टर द फॉल्ट यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर, वेयर इट इज गिवन 1 1 1 1। The three-fold voltage is given, for example, it is given as 1.11। ये Z बस आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो इसमें देखिए all एलिमेंट्स आर 0, तो इसमें V1 निकालना है तो इसका केवल kth Z1k इसमें मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस Z1k IK F, ये V1F आ जाएगा, V2F V3F। ऐसे ही V2 निकालेंगे तो इसमें क्या कि इसमें K2 सॉरी Z kth नंबर का ये Z2k का इससे मल्टीप्लाई होगा, Z2k IK और 1 माइनस दैट वैल्यू, तो ये हमारा V2 सभी बसेस का फॉल्ट वोल्टेजेस आ जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? धीरज? हाँ, तो इस तरह नॉर्मली आपसे कहा जाएगा फॉल्ट करंट निकालें, फिर फॉल्ट लेवल निकालें। फॉल्ट लेवल निकालने के लिए पर यूनिट करंट है, इसमें MVA का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉल्ट MVA आ जाएगा, फॉल्ट लेवल आ जाएगा। और सभी बसेस का वोल्टेज, फॉल्ट वोल्टेज निकालना, वोल्टेज आफ्टर द फॉल्ट है जो ऑकर, तो इस इक्वेशन से निकालेंगे। ओके, नाउ इसमें हमने ये एज्यूम किया है अब तक प्री फॉल्ट वोल्टेजेस आर इक्वल टू 1 पर यूनिट, ये 1 पर यूनिट है। अदरवाइज इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वन तो हमने ये क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे हमने इसको पहले किया है, इसको सॉल्व किया है बाई बस, इसका क्या किया है, ये इसको हमने सॉल्व किया, ये वोल्टेज सोर्स था, इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। ये पहले एक प्रैक्टिकल आपको कराया हुआ है, यही सेम न्यूमेरिकल पे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कर लिया, इसका वाई बस बना लिया, आई बस इज इक्वल टू वाई बस, ये था ना, ये वाई बस बना लिया, इसका इनवर्स करके जेड बस आ गया, तो आई बस इज इक्वल टू और वी बस इजिकल टू जेड बस आई बस ऑलरेडी गिवन है, जेड बस यहाँ से बनाया हुआ है इनवर्स लेके, और आई बस ये था I1 I2 I3, ये I1 I2 जो वोल्टेज से करंट में कन्वर्ट किया था और 2 जीरो थे, I1 I2 वाज दिस, I3 I4 वाज जीरो। तो ये हमारा यहाँ से हमने वी बस निकाला था। तो ये जो वी बस था मींस इसमें क्या आएगा, V1 V2 V3 V4। तो जो ये V2 है, V2 इज द वोल्टेज ऑफ द बस नंबर 2। ये क्या था, प्री फॉल्ट वोल्टेज। तो आपको एग्जैक्ट अगर निकालना है इसको, जब आपने देखो इफ यू माइट हैव सॉल्व दिस, ये क्वेश्चन हमने पहले आपको दिया था और मेरे पास इसका रिजल्ट है, आपका भी आया होगा। तो V2 की वैल्यू 1.04 आया है, V3 और V4 1.04 और वहां हमने 1 रखा है। सो देयर इज नो, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ओनली 4% चेंजेस आर देयर आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद दैट। तो हमने 1 की जगह 1.04 ले लेंगे, देन हार्डली देयर विल बी एनी डिफरेंस। So fault current will remain equal to that. ओके, तो एग्जैक्ट निकालना है तो इसको आप लोड फ्लो करिए, लोड फ्लो से आप V2 निकालना है और V2 की वैल्यू वहां पे रखें, V2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये करंट आ जाएगा, फिर ये सभी वोल्टेजेस आ जाएंगे। तो
otherwise you can take it as a 1 per unit. तो ये आ गया नाउ तो अच्छा, so other than this we need to calculate what are the fault line flows during the fault. Line flows means लाइन फ्लोज एक तो होता है फॉल्ट करंट निकालना, दूसरा होता है फॉल्ट वोल्टेजेस व्हेन द फॉल्ट हैज ऑकर्ड, और तीसरा चीज क्या निकालने के लिए कहते हैं कभी कभी लाइन फ्लोज, इनके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, इनके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है। अगर ये यहाँ फॉल्ट करंट इतनी है, फॉल्ट करंट इतनी है, तो सभी वोल्टेजेस आपको पता लग गए हैं, ये वोल्टेज ये वोल्टेज ये वोल्टेज, और इम्पीडेंसेस पता है। तो ये वोल्टेजेस पता है, अगर फॉल्ट वोल्टेजेस पता है और ये इम्पीडेंसेस पता है, तो इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगी, ये करंट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया हुआ है, दिस VI माइनस VJ ZIJ, ये लाइन फ्लो मीन्स I और J के बीच में जो बस ट्रांसमिशन लाइन है उसके बीच में करंट का फॉर्मूला है, वोल्टेज ऑफ I माइनस वोल्टेज ऑफ J ड्यूरिंग फॉल्ट ZIJ, ये फॉल्ट करंट आ गया। ओके, तो इसके द्वारा आप फॉल्ट करंट निकाल सकते हैं। बहुत बार ये कहते हैं ये फॉल्ट करंट निकलेगा, बहुत बार ये पूछेंगे अप्लाई द प्री फॉल्ट एक्चुअल फॉल्ट करंट, ये तो हमारी फॉल्ट करंट आ गई जब हमने क्या माना था, प्री फॉल्ट करंट आर जीरो, प्री फॉल्ट करंट आर जीरो। अगर हम इसको एग्जैक्ट करंट निकालना है तो ये जो फॉल्ट करंट माइनस लोड फ्लो में जो करंट आया था, जब हमने ये लोड फ्लो किया था, यहाँ लोड फ्लो किया था, लोड फ्लो करने पे भी वोल्टेजेस आ गए थे, वोल्टेज वाइज इंपीडेंस करके इसमें करंट आ रही थी, तो ये करंट और ड्यूरिंग फॉल्ट वाली करंट उसको सुपरपोजिशन करेंगे, मींस पहले 5 एम्पियर थी और पहले 1 एम्पियर था, अब ये 5 आ रही है, तो एग्जैक्ट, और आफ्टर अलजेब्राइक सम कंसीडरिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, नेट करंट विल बी द सम ऑफ द टू करंट। तो इस तरह हम ये फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। Any question in this? इसमें कुछ पूछना है? So I hope you can do it। और एक एक्सपेरिमेंट दिया था मैंने कि फॉल्ट करंट के लिए, फॉल्ट करंट और फॉल्ट वोल्टेज के लिए प्रोग्राम लिखें, कल किया है वो आपने, किसी ने सबमिट किया है? कर दिया सर। ठीक है, तो उसके जो रिजल्ट आएंगे उसको आपने बाई हैंड इसे आप सॉल्व करें और उसके थ्रू सॉल्व करेंगे, देन यू कंपेयर द रिजल्ट। ओके, so now in the next class we will take the unsymmetrical fault. Okay, so if you have any